آڈیو لیکس پر وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، عمران خان، ساتھی وزراء اور اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری۔ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر ایف آئی اے سے تحقیقات اور قانونی کارروائی کی بھی منظوری۔ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، قومی مفادات پر سنگین اثرات ہیں، قانونی کارروائی لازم ہے۔ کابینہ کابینہ کمیٹی کی ایف آئی اے کو سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے کر مجرموں کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ ایف آئی اے دیگر اداروں سے بھی اہلکار ٹیم میں شامل کر سکتی ہے۔ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق پہلی آڈیو 28 ستمبر جبکہ دوسری 30 ستمبر کو منظر عام پر آئی۔ آڈیو میں عمران خان، ان کے ساتھی وزراء شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سائفر تبدیل کرنے پر مشورہ کر رہے ہیں۔ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ آئندہ کسی فورن ایجنٹ کو ڈالرز کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ٹویٹ۔ عمران خان پستیوں میں گرا ہوا شخص ہے، بارہا ثابت کیا کہ وہ ایک بدتمیز اور خواتین کی عزت نہ کرنے والا انسان ہے۔ افسوسناک امر ہے کہ ان کی پارٹی خواتین اس رویے کی نفی کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ یہ انتہائی شرمناک رویہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کتنا چھوٹا انسان ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ امریکہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے فوجی مشیر سے ملاقات۔ خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب پر بھی بات چیت۔ جنرل بیرا میں ڈیوب کی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ اور پاکستان انگلینڈ تاریخی ٹی 20 سیریز فاتح کون ہوگا؟ فیصلہ کن معرکہ آج لاہور میں ہوگا۔ میچ دیکھیے شام 7:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ 7 میچز کی سیریز 3-3 سے برابر، شائقین کرکٹ پاکستان کی جیت کے لیے پر امید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ۔ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل۔ پروگرام میں اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل سے خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریک کے بعد پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے آڈیو لیکس پر کابینہ کے بڑے فیصلے کی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھی وزراء اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے آغا مسعود خالد۔
वफाकी काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी तश्कील दी थी, जिसने 1 अक्टूबर को मुनक्किदा इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। काबीना कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया गया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। काबीना कमेटी की सिफारिशात में कहा गया कि यह कौमी सलामती का मामला है जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़िर असरात हैं, इसलिए कानूनी कार्रवाई लाजिम है। FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। सिफारिशात में मजीद कहा गया कि FIA इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और अहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। FIA की टीम जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। डिप्लोमेटिक साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की पहली ऑडियो 28 सितंबर को मंजर आम पर आई थी, जबकि दूसरी ऑडियो 30 सितंबर को मंजर आम पर आई। इमरान खान की ऑडियोज ने अमरीकी साइफर की तहरीक इंसाफ की साजिश को बेनकाब कर दिया। खिलाड़ी खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, एब्सोल्युटली नॉट भी एक खेल ही साबित हुआ। इमरान खान की मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिश अवाम के सामने आ गई। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया हो ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर हम इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेब, बस ठीक है, पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं परसों में उसी कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है, और फॉरेन सेक्रेटरी सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये तो ये सर विफाकी वुज़रा और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस हवाले से कहा कि साइफर के साथ जालसाजी करने पर इमरान खान को कौम से माफी मांगनी चाहिए। ऑडियो लीक इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने साजिश की पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, आपने साजिश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, आपने साजिश की पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ, आपने साजिश की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ, आपने साजिश की सफारती ताल्लुकात के खिलाफ। कोई मुल्क आपको कोई खत लिखने पर तैयार नहीं है, कोई सफीर आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी का पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं रहा। वो कहते हैं कि हम कोई खत भेजें या हम कोई साइफर भेजें या हम कोई कम्युनिकेशन भेजें तो हमें बाद में पता चलेगा कि वो तो तब्दील करके तो उसका तो साजिश बन गई है। इस ज़िम्न में विफाकी काबीना की जानिब से ये फैसला भी किया गया है कि इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस के बाद इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके साथी वुज़रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक जो कि 30 सितंबर को रिलीज़ की गई और उसमें जो गुफ्तगू हुई उस हवाले से आगा मसूद खालिद की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। और अब इस पर वफाकी काबीना ने एक उसूली फ़ैसला लिया है कि इसके न सिर्फ पार्लियामेंट में बहस की जाएगी बल्कि FIA के ज़रिए इसकी तहकीकात भी की जाएंगी और FIA को इख्तियारात भी सौंप दिए गए हैं। किसी भी दूसरे इदारे के एहलकार को अगर शामिल करना चाहे FIA तो उसके लिए भी वो शामिल तफ्तीश करने के लिए तलब भी कर सकते हैं और क़वानीन SOPs तय कर दिए गए हैं। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। ऑडियो लीक्स पर काबीना ने यह बड़ा फ़ैसला लिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिन्होंने साइफर के हवाले से जो गुफ्तगू की वो ऑडियो लीक हुई और आगा मसूद खालिद ने अपनी रिपोर्ट में
डिटेल से आगाह किया। पार्ट 1 में क्या बातचीत हुई, जो ऑडियो लीक हुई, और पार्ट 2 में जो गुफ्तगू हुई और उसमें किस तरह से साइफर के मिनट्स को तब्दील करने की कोशिश की गई और बाकायदा उसको एक सियासी मंजरनामा बनाकर पेश करने की कोशिश की, सियासी विक्टिमाइजेशन के हवाले से कि बैरूनी साजिश करार दिया गया। हालांकि जो साइफर था, जो उसका कंटेंट था, वो कुछ और था और उसको डिक्लासीफाई भी नहीं किया गया। अब इस हवाले से तहकीकात का फैसला किया है वफाकी काबीना ने, और वफाकी काबीना का ये एक बड़ा फैसला है। इसमें न सिर्फ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तहकीकात की जाएंगी, उनके साथ ही वज़रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से भी तहकीकात की जाएंगी। FIA इस हवाले से तहकीकात करेगा। बिल्कुल जी, और यकीनन ये एक अहम मामला है, कौमी सलामती का मामला है। इस हवाले से ऑडियो का लीक होना और फिर इस तरह से सामने आना यकीनन एक अहम मामला है। इस पर ये एक बड़ा फैसला है जो काबीना की जानिब से किया गया है। कानूनी कार्रवाई होगी और जब तहकीकात की जाएंगी तो यकीनन उसके बाद जो फैसला है वो किया जाएगा कि आइंदा जो इस किस्म के वाक़यात हैं वो ना हो सकें। इनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि कानूनी कार्रवाई की जाए और एक ऐसी मिसाल सेट की जाए कि आइंदा से किसी की ऐसी ज़रूरत ना हो कि वो कौमी सलामती के मामलात को इस तरह से डील करे। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। ऑडियो लीक्स एक ऐसा मामला है, हमारी कौमी सलामती की बात करें या हम अपने सालमियत की बात करें, अब इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को एक धचका लगा है, फिर ये इस तरह की गुफ्तगू का सामने आना, आप समझते हैं कि हम इसको रीबिल्डिंग फेज़ के लिए काबीना ने जो आज फैसला किया है FIA के ज़रिए तहकीकात करवाने का, कितना मौसर और कितना जानदार फैसला है ये वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सिर्फ FIA से ही तहकीकात जो है वो नहीं करवाई जाएँ, बल्कि इसके अंदर बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी एक कमेटी फॉर्म की गई थी माजी की हुकूमत के अंदर, और उसका जो ISI के जो सरबराह थे वो उसके हेड कर रहे थे, और इसके अंदर तमाम मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो शामिल होती हैं, क्योंकि मामला जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का है, और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है मामला। अब मुल्क के 4 साल तकरीबन वज़ीर आज़म जो रहे वो यही नहीं बता पा रहे कि ये क्लासिफाइड है या नहीं क्लासिफाइड है, क्योंकि वो अपने वाज़े कह रहे हैं कि अगर तो ये साइफर क्लासिफाइड डी क्लासिफाइड है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये वज़ीर आज़म को नहीं मालूम कि वो डी क्लासिफाइड है या क्लासिफाइड है, तो सवाल तो पहले ये उठता है कि एक वज़ीर आज़म को ये बात क्यों नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि वो मुकम्मल इजहार नहीं कर रहे, कि वो कहते हैं मुझसे गुम हो गया या हो सकता है कहीं गायब हो गया हो। दोनों सूरतों में ये कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो इसको बाहर निकाल लाएं या कोई ऐसा तरीका करें। देखें, जो सदर ट्रंप के ऊपर भी जब अभी उनके घर पे छापा मारा गया तो बाकायदा उसकी तहकीकात हुई। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का ये इक़दाम दुरुस्त है कि बजाय इसके कि वो सिर्फ जो ज़बानी कलामी बातचीत के या सिर्फ मीडिया के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग के, उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया। मेरे ख्याल में पार्लियामान जो है वो एक बहुत अच्छा फोरम है, इसके ऊपर बात हो सकती है। इसी तरीके से जो तहकीकात कराने की बात है, ये इसलिए भी ज़रूरी है, सिर्फ ये कोई इमरान खान साहब के हवाले से नहीं, बल्कि इसलिए ज़रूरी है ताकि एक मुल्क की राज है और ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और अगर ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है तो उसका इस तरीके से उस पर गैर जिम्मेदाराना रवैया और पूरी दुनिया में जगहसाई करवाना, मेरे ख्याल में ये किसी के लिए भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो जिक्र आ रहा है। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आप मुल्क के वजीर आज़म होते हैं या अहम ओहदों पे फाइज होते हैं, आपके सीने में बहुत सारे राज होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पूरी दुनिया के सामने करते हैं। और फिर एक ऐसा साइफर जिसके मुतलिक अभी ऑडियो लीक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर भी हमने इस बात सुनी, और फिर अब जो ये इंटरव्यू जो कि एक मनपसंद टीवी को दिया गया, उसके अंदर भी ये बात करना कि वो गायब हो गया या वो पता ही नहीं है, उसकी वजह से आपने अदलिया को, आपने अफवाज को, आपने ऐसी ऐसी मायूब ज़बान इस्तेमाल की, इदारों को जो है आपने तनाज़ा खड़ा कर दिया, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उनके सरबराहान को जो है वो आपने रगेदना शुरू किया, आपने न्यूट्रल कह के एक बाकायदा उसको एक गलत अंदाज के अंदर पेश करने की कोशिश की। ये सारा कुछ एक ऐसी बात के ऊपर जिसका उनको इल्म ही नहीं है कि वो क्लासिफाइड था या नहीं क्लासिफाइड था, यानी कि उनको यही पता ही नहीं है। तो फिर आप, इसका मतलब है जो पूरा नैरेटिव था
जिस के ऊपर एक बैरूनी साजिश या मुदाखलत या इम्पोर्टेड हुकूमत जैसे अल्फाज जिनको सुन के इंसान के कान पक गए, मेरे ख्याल में अब तमाम मुहब्बे वतन लोगों को और साहिब जो अक्ल दानिश फहम फरासत हैं, उन लोगों को इकट्ठे होके इस मामलात को वंस एंड फॉर ऑल इसको किसी पाया तकमील पे पहुंचाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अदालत के असूल और आइन जो है वो सबके लिए बराबर है। और अगर आइन के अंदर आइन सबके लिए बराबर है, ये भी बहुत ज़रूरी है बताना और समझाना और ये इंप्रेशन देना। साथ ही साथ सर ये फरमाइएगा कि खारिजा पॉलिसी पर अगर हम नज़र डालते हैं और इस किस्म की जो वाक़यात हैं वो यकीनन खारिजा पॉलिसी पर भी असरअंदाज होते हैं, क्योंकि जब हम दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने की बात करते हैं वहाँ पर एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या समझते हैं कि आज का जो फैसला है काबीना का, ये कितना अहम साबित हो सकेगा दूसरे ममालिक का जो कॉन्फिडेंस है उसको एक मरतबा फिर से बिल्डअप करने के लिए कि वो यहाँ पर अपने डेलीगेशंस को भेज सकते हैं, वो आ सकते हैं, अहम मामलात पर बातचीत कर सकते हैं और उनकी जो होने वाली बातचीत है, जो अहम मामलात हैं वो लीक नहीं होंगे, वो सामने नहीं आएंगे, उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी होगी? देखिए, ये तो क्योंकि एतमाद जब इंसान खोता है तो फिर उसके अंदर वक्त लगता है उसको दोबारा बहाल करने में। अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो हमने देखा कि बरतानिया की एम्बेसी में भी गए, उन्होंने क्वीन के हवाले से भी जो है वहाँ आखिरी रसूमात में शिरकत की, उसके बाद वो अमेरिका के दौरे पे रवाना हुए, उसके बाद वो अमेरिकी जो एक हमारी दोस्ती का एक उनके जश्न था उसके अंदर भी शरीक हुए, चीन के साथ भी अपने वो ताल्लुकात को इस्तवार कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ भी कर रहे हैं, कतर के साथ भी कर रहे हैं, यूएई के साथ भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर वक्त लगेगा क्योंकि हाथों की लगाई हुई गिरहें जो हैं वो दांतों से खोलना पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ जो है उसके अंदर आपके खारजा पॉलिसी की बात आ जाती है। खारजा पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना पड़ता है और आपको आए दिन दोस्त तब्दील नहीं किए जा सकते। आपकी तरजीहात यकीनन उसमें तब्दील होती हैं, आपको देखना पड़ता है। ये नहीं है कि कोई ये दो दोस्तों के दरमियान कोई दोस्ती नहीं है, ममालिक के दरमियान में है। सुपर पावर के कुछ अपने मजबूरियां होती हैं, उनको अंडरस्टैंड हमें करना पड़ता है। और मेरे ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अपोजिशन की जानिब से जो है वो कमज़ोर किस्म की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी और अपोजिशन की जानिब से जो है वो अगर ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये अपनाए जाएंगे तो यकीनन फिर हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बहुत सख्त जो है वो ज़ौक़ पहुँचेगा। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि अमेरिका के और पाकिस्तान के जो माबैन ताल्लुकात थे वो बहुत उनके अंदर एक खला पैदा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए है एक दूसरे को। अब हमें दोबारा से ये ताल्लुकात जो है वो उस्तवार करना पड़ रहे हैं। को खारजा महाज पर जैसे जो जिस तन्हाई का सामना करना पड़ रहा था, खुदा न खास्ता अब हालात बेहतरी की तरफ गामज़न है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को और ऑडियो लीक्स के हवाले से चेयरमैन PTI उनके साथ ही वज़रा के हवाले से जो गुफ्तगू सामने आई है उस पर आप तज्ज़िया पेश कर रहे थे और जो काबीना ने फैसला किया है उस हवाले से भी आप आगाह कर रहे थे कि एक अच्छा फैसला है और इसमें आपकी राय ये है कि अब नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें जो शुरका थे वहाँ से भी आरा होनी चाहिए थी तहकीकात के हवाले से। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताएं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ मोहम्मद मंशा ने अपने बेटे के हमरा मुलाकात की है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई है। इस दौरान मियाँ मोहम्मद मंशा ने वज़ीर आज़म को फ्लड रिलीफ फंड के लिए 23 मिलियन रुपए का चेक भी पेश किया है। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ मोहम्मद मंशा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपने बेटे के हमरा मुलाकात की है और इस मौके पर उन्होंने जहाँ बाकी मामलात पर बातचीत की है वहीं पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 30 मिलियन रुपए की इमदाद का चेक भी पेश किया है सैलाब ज़दगान के लिए मियाँ मोहम्मद मंशा ने। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि साइफर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। ट्वीट किया उन्होंने और अपने ट्वीट में उनका कहना है कि कौमी अमानतों में ख़यानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलर्स के एवज सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना हो। उन्होंने कहा कि एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि कहीं पकड़ा ना जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो फिर कहता है कि मुझसे साइफर ही गुम हो गया।
وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز عمران خان کے بارے میں ٹھیک کہتی ہیں کہ وہ پستیوں میں گرا ہوا شخص ہے۔ عمران خان نے بارہا ثابت کیا کہ وہ ایک بدتمیز اور خواتین کی عزت نہ کرنے والا انسان ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان خود بھی خواتین کی عزت نہیں کرتے اور پارٹی بھی اسی ذہنیت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ ان کی پارٹی خواتین اس رویے کی نفی کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک رویہ ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کتنا چھوٹا انسان ہے۔ اور ناظرین یہاں کچھ بات کریں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی، جن کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ملک کی تاریخ کا خطرناک کھیل کھیلا اور بہت ساری ریڈ لائنز کراس کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ ناروال میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کر کے ملکی مفادات سے کھیلا، اسپتال کے نام پر اکٹھے ہونے والے اربوں روپے سیاست کے لیے استعمال کیے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، خدمت کا ہے، لیکن عمران نیازی ہر روز اپنی انا اور جھوٹ کی سیاست میں ایک سیڑھی اور چڑھتا ہے۔ آڈیو ٹیپس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حقیقی آزادی دراصل ایک ناٹک تھا، دراصل ایک بیمار ذہن کی بیمار سوچ تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی تحریک عدم اعتماد کا رخ ایک سازش کی طرف موڑ دیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے بہت ساری ریڈ لائن کراس کی ہیں، سائفر کو اپنی مرضی کا مطلب پہنایا گیا۔ عمران نیازی صاحب، آپ نے آئین کی ریڈ لائن کراس کی ہے، آپ نے قانون کی ریڈ لائن کراس کی ہے، آپ نے اپنے وزیر اعظم کے حلف کی ریڈ لائن کراس کی ہے، آپ نے قومی اداروں کی توہین کی ریڈ لائن کراس کی ہے، آپ نے پاک فوج کے اوپر حملے کر کے اور نہایت ہی شرمناک اور گھٹیا حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی ہے، آپ نے عدلیہ پہ، الیکشن کمیشن پہ حملے کر کے، چیف الیکشن کمشنر پہ حملے کر کے فورن فنڈنگ کی ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، آپ نے توشہ خانہ کی ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، آپ نے نالائکی کی ریڈ لائن کو کراس کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ آج مہنگائی عمران خان کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ 2018 میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا۔ عمران خان کے 4 سالہ دور میں ترقیاتی بجٹ میں اضافے کی بجائے کمی ہوئی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں تحریک انصاف کے فورم سے اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ وہ ملک کو بد تہذیبی اور بد اخلاقی کی ایسی نہج پر لے کر جا رہی ہے جہاں واپسی مشکل ہے۔ اسلام آباد میں خواتین کے خلاف ہراسانی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے موضوع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی تقریروں اور بیانیوں کے ثمرات کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا استحصال ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کے رہنما چپ ہیں۔ وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ جو مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 49% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کے سرکاری دورے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے فوجی مشیر جنرل بیرام ڈیوب سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات میں خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بحرانوں کے دوران اقوام متحدہ کے فوجی مشیر کے دفتر کے مثبت کردار کو سراہا۔ جنرل بیرام ڈیوب نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی مکمل معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ جنرل بیرام ڈیوب نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں تعاون اور انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا۔ پاکستان ریلوے نے آج کراچی سے اپنی سروس مرحلہ وار بحال کر دی ہے۔ صبح 10 بجے رحمان بابا ایکسپریس کراچی کے کینٹ اسٹیشن سے پشاور براستہ فیصل آباد روانہ ہوگی۔ کراچی سے دوسری ٹرین خیبر میل رات 10 بجے کراچی سے پشاور براستہ ساہیوال، لاہور، راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ قراقرم ایکسپریس، باغ بزنس ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس کو بھی 5 اکتوبر سے بحال کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ملک بھر بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں سیلاب کے باعث کراچی کا 26 اگست سے ملک بھر سے بذریعہ ٹرین رابطہ منقطع تھا۔ سیلاب سے متاثر ٹریک کی بحالی کے بعد ٹرین سروس کے دوبارہ آغاز پر مسافروں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔
सैलाब की वजह से होने वाले रेलवे ट्रैक के को नुकसान पहुंचने की मरम्मत के बाद कराची से ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई है। मुसाफिरों ने रेल का पहिया दोबारा चलने पर खुशी का इजहार किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक के लिए तो मैं यही कहूँगा, सलूट है उनको कि क्योंकि वो पिछली बार भी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पाकिस्तान रेलवेज़ को अपने पैरों पे खड़ा किया था। अब दोबारा आए हैं, अभी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे अपने फुल पेस पे, लेकिन अभी हम लोग उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो आगे पाकिस्तान रेलवेज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रहमान बाबा एक्सप्रेस चल रही है, खैबर मिल एक्सप्रेस चल रही है कराची से, जो कि 11 सितंबर से जो है रोडी से चला दी गई थी कि इन्होंने कहा था कि खानपुर वाला ट्रैक क्लियर हो गया, अब आप जा सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने कराची से भी ऑप्शन दे दिया कि आप कराची से भी ले जा सकते हो 2 ट्रेनों को। 5 अक्टूबर को इन्होंने फिर कहा है कि हम और ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की और शुक्र है आज चल गया। अभी रहमान बाबा जा रही है यहाँ से अटक, और इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूँ। इस वक्त वो जज्बात हैं जो एक मतलब एक रेल फैन ही बता सकता है आपको। इस इतनी हद तक खुशी है कि क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए खुशी के हमारे। और ये जो 1 महीना 5 दिन गुजरे, ये हम लोग को पता है कि हम लोगों ने कैसे गुजारे हैं। रेल का पहिया बहाल हो गया है, कराची का राब्ता पाकिस्तान भर से बहाल हो गया है और जिस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, उनकी मेहनतों के हवाले से और उनकी कोशिशों के हवाले से अवाम के जज्बात भी नाज़िया हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। तो यकीनी तौर पर जहाँ पर मुश्किल होती है वहाँ पर काम करने का और मेहनत करने का ज़्यादा मज़ा आता है। इससे कबल भी जब वो वफाकी वज़ीर रेलवे बने तो रेलवे को इसी तरह से उन्होंने एक अहम इदारा बनाया और अब एक दफ़ा फिर इस खस्ता हाल पाकिस्तान रेलवे को एक दफ़ा फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, और अगर हम यूँ कहिए कि उसके पहियों में जान डालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और हमने तासुरात भी सुने आवाम के, यकीनन वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये एक मुस्बत इक़दाम है जो उठाया गया है। आगे बढ़ेंगे जी, बात करेंगे कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। छुट्टी के रोज़ तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खातून जज को धमकियां देने के केस में अबूरी जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। हफ्तावार तातील के रोज़ दायर की जाने वाली दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। PTI की कानूनी टीम के राब्ता करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच का अमला फौरी अदालत पहुंचा, जहां इमरान खान की जानिब से बाबर रवान एडवोकेट ने वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी और अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। और इस तरह से छुट्टी के रोज़ भी तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खातून जज को धमकियां देने के केस में अबूरी जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि तिजारत के शोबे में मजबूत पाक अमेरिका शराकतदारी पाकिस्तान में हालिया बहरानों को अमेरिकी कारोबारी कम्युनिटी के लिए मौके में बदल सकती है। इन ख्यालात का इजहार सफ़ीर पाकिस्तान ने सदर US चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुज़ैन क्लार्क से चैम्बर के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और इसके मुल्हिका रियासतों में समुद्री तूफान ने दोनों ममालिक के मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत को मज़ीद बढ़ा दिया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान में सालाना 36 मिलियन टन से ज़ायद अशियाई खुरोनोश ज़ाया हो जाती हैं। ज़ाया होने वाली खुराक को मुफीद बनाने के लिए नवाज शरीफ ज़रे यूनिवर्सिटी मुल्तान के नौजवान मुहक्किकीन ने एक कामयाब काविश की है। उन्होंने क्या कोशिश की है, ये तफसील से बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम अपनी इस रिपोर्ट में। खराब हो जाने वाली सब्जियां, फल और बच जाने वाले खाने को ठिकाने लगाना जदीद दौर के अहम मसाइल में से एक है। नवाज शरीफ ज़रे यूनिवर्सिटी मुल्तान के नौजवान मुहक्किकीन ने एक कीड़े के जरिए फूड वेस्ट को पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का कामयाब तजर्बा किया है। गली सड़ी सब्जियां और बच जाने वाला खाना ब्लैक सोल्जर नामी कीड़े की मरगूब ग़िज़ा है, जबकि ब्लैक सोल्जर कीड़े में 50% तक प्रोटीन मौजूद होती है, जो परिंदों, मछलियों और पालतू जानवरों की बेहतरीन ग़िज़ा है। ये जो इंसेक्ट है ये फूड वेस्ट को मैनेज करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसके अंदर, इसकी जो बॉडी के अंदर तकरीबन 50% तक प्रोटीन कंटेंट होता है, जो कि पोल्ट्री फीड के अंदर और फिश फीड के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ मुर्गी के वेट में इजाफा होता है, बल्कि उसके एग लेइंग और उसकी जो एग का साइज है वो बेहतर होता है। ब्लैक सोल्जर कीड़े की मादा 500 से 900 तक अंडे पैदा करती है। सिर्फ 1 ग्राम अंडों से 30 दिन में 5 से 9 किलोग्राम तक लार्वा हासिल किया जा सकता है। लार्वे को हम लोग किचन वेस्ट पे पालते हैं,
30 से 35 दिन इसकी ड्यूरेशन होती है, लार्वल ड्यूरेशन जो होती है, उसके बाद ये जो प्री प्यूपल स्टेज में चला जाता है और फिर ये एडल्ट बन जाते हैं। आलमी मार्केट में ब्लैक सोल्जर कीड़े के लार्वे की कीमत कम से कम 1400 रुपए फी किलोग्राम तक है। इस लिहाज से ब्लैक सोल्जर कीड़े की फार्मिंग एक नफा बख्श कारोबार है। ब्लैक सोल्जर वॉर्म की बड़े पैमाने पर पैदावार से न सिर्फ वेस्ट के खात्मे में मदद मिलेगी, बल्कि परिंदों और जानवरों की खुराक के लिए बेहतरीन प्रोटीन भी मैसर आएगी। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। ख्वाजा कलीम की रिपोर्ट देखने के बाद हम तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ये कहते हैं कि वो ज़ाया हो जाती है। ज़ाया हम जब ज़ाया कर देते हैं उसके बाद भी उससे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, पैदा की जा सकती हैं कि कुदरत का शाहकार सामने आता है, एक ऐसा कीड़ा पैदा किया जाता है जो कि जिसके मज़ीद फ़ायदे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि थोड़ी सी तवज्जो से, ध्यान से और थोड़ी सी मेहनत से काम कर लिया जाए तो कुछ ना कुछ मुस्बत ज़रूर सामने आ जाता है, कोई ना कोई यूटिलाइज़ होने वाली चीज़ हमारे सामने आ जाती है। अच्छा जी, खबर शामिल करेंगे पाक फ़ज़ाइया के हवाले से। पाक फ़ज़ाइया खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में तिब्बी इमदाद की फराहमी और बहाली के अमल में सिविल इंतज़ामिया के साथ भरपूर इमदाद में शामिल है। पाक फ़ज़ाइया के मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट सैलाब से मुतासर अफराद में पानी से पैदा होने वाले बीमारियों की तशख़ीस के अमल को जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंद ख़ानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया, जिसमें 17,000 खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें और 1,350 खुश्क राशन के पैकेट शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया की मेडिकल टीम्स ने 400 मरीज़ों का मुफ्त तिब्बी मुआयना भी किया। और आज के दिन की खासियत अहमियत के हवाले से आपको आगाह करें कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में अदम तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में अदम तशद्दुद के रवैये को फ़रोग़ देना है। मज़ीद तफसील क्या है, इस दिन को मनाने का आगाज़ क्यों किया गया, ज़रूरत क्यों पेश आई, बता रहे हैं मलिक उमर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का आलमी दिन करार देने पर 15 जून 2007 को वोटिंग कराई, जिससे पजीराई मिली और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मेंबर ममालिक को अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने के लिए ये दिन मनाने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा में अदम तशद्दुद का दिन मनाने की तजवीज़ देने वाला गांधी का भारत खुद तशद्दुद तर्क कर देने पर हरगिज़ आमादा नजर नहीं आता। खा ये भारत की अक़लियतें हों या मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, भारत मुसलसल आग और खून की होली खेलकर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करता चला आ रहा है। अपने मुतशद्दुद और जारहाना रवैयों की वजह से भारत खित्ते के अमन के लिए भी मुसलसल खतरा बना हुआ है। यौम अदम तशद्दुद मनाने का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कायम अमन का फ़रोग़ और अदम तशद्दुद के जज्बात को आम करना है, ताकि आलमी मसाइल और तनाज़ात को बामी बातचीत से हल किया जा सके। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया में अदम तशद्दुद के रवैये को ख़त्म करना है और जो अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता है उसकी वजह से फिर तशद्दुद को हवा मिलती है और तशद्दुद की वजह से तनाज़ात में इजाफ़ा होता है। मलिक उमर ने जिस तरह से इस पूरे आज के दिन की अहमियत को लिंक किया है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से, सारे अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, अब दुनिया भर के जितने भी तनाज़ात हैं उसमें इंसानियत के ऊपर होने वाला तशद्दुद इस कदर बहिमाना तशद्दुद होता है कि इंसानी उसूल या फिर इंसानियत ही उस पर शर्मिंदा होती है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मुसरत अमीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप आलमी कवानीन के हवाले से, इक़्तिसादी उमूर पर, समाजी मामलात पर लिखती भी हैं। आपकी तहकीकात मुख्तलिफ मकाले हैं जो शाया हो चुके हैं मुअक्कर जरीदों में। डॉक्टर मुसरत अमीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आज अदम तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है, एंटी वायलेंस, और चूँकि तशद्दुद इंसान अपने गुस्से का इजहार करता है, तशद्दुद को हवा मिलती है और फिर उसका जवाब भी तशद्दुद से ही दिया जाता है। अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आलमी कानून साजी कैसे की जा रही है तशद्दुद को रोकने के लिए? थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो है बड़ी खुसूसी अहमियत का हामिल इस वजह से है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है जो 2 अक्टूबर है। पहले तो ये है कि इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया के थ्रू, आजकल सोशल मीडिया बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को इस चीज़ का पता चल रहा है, क्योंकि ये बेसिकली इसको जो अडॉप्ट किया गया था 2007 में, तो इतना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट की आपने बात की, अभी आप जब इंट्रो दे रहे थे नॉन वायलेंस डे के हवाले से, तो इसमें बता रहे थे कि स्टेट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ता है और फिर बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे शुरू होता है।
تو تھوڑا سا بتاتی چلوں آپ کو کہ یہ جو ڈے ہے اس کو کیوں اس کو کمیموریٹ کیا جاتا ہے. یہ اس کو 2007 میں بیسکلی اس کی جو قرارداد پیش کی گئی تھی مہاتما گاندھی کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا تھا نان وائلنس کے حوالے سے, اور جو پاکستان انڈیا کی جو انڈیپینڈنس ہوئی اور وہ سارا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی تشدد ہو. پھر اس کو لے کے بڑی انہوں نے ایک موومنٹ بھی چلائی اور اس پہ ان کا بڑا بلیف تھا اس سلسلے میں, اور اس چیز میں وہ کہتے تھے کہ پاورٹی از دا ورسٹ فارم آف وائلنس. پھر انہوں نے کہا نان وائلنس از اے ویپن آف دا اسٹرانگ. آئی مین یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ بات کی کہ نان وائلنس از اے ویپن آف دا اسٹرانگ. اٹ مینس کہ اسٹیٹس جو ہیں اگر ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہے تو اس کو جو انڈیویجول ہے یا ہیومینٹی کی آپ نے بات کی ان کو وکٹمز نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا. اور جتنے بھی آپ کے کانفلکٹ ہیں اس کو نیگوشیشنز کے تھرو اور بڑے پیسفل طریقے سے بھی سیٹل کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی, اور باقی انڈیویجول لیول پہ بھی یہ چیزیں بہت ساری جو ہے میٹر کرتی ہیں. اس پہ یونائٹڈ نیشن کا ڈیکلریشن ہے جو آف ہیومن رائٹس, اس میں انہوں نے پوری جتنی 193 ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اس کو ریٹیفائی کرتی ہیں اور اس کو مانتی ہیں کہ, اور اس میں کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ وداؤٹ اینی ریگارڈلیس آف اینی ڈسکریمنیشن کہ نیشنلٹی کہاں کی ہے, پلیس آف ریزیڈنس کہاں کی ہے, جینڈر, ایتھنک گروپ کیا ہے, کلر کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, لینگویج کیا ہے, کہ سب لوگوں کو جینے کا حق ہے اور ان پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. اب تشدد نہیں ہونا چاہیے, سب لوگوں کو جینے کا برابر حق بھی دینا چاہیے, یہ ان کا بنیادی حق ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ تشدد کی جب ہم بات کرتے ہیں صرف جسمانی تشدد نہیں ہوتا, ذہنی اعصابی تشدد بھی ہوتا ہے. ہم دوسروں کو جب ٹینشنز دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی تشدد ہی کی ایک قسم ہے. آج کا یہ جو دن منایا جا رہا ہے, میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے آج کے دن آپ پیغام دیں کوئی ایسا کہ جس سے وہ اپنی زندگی میں اگر 1% بھی تبدیلی لا سکیں, تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو دن ہم منا رہے ہیں اس کا مقصد کسی حد تک پورا ہو پائے گا. بیسیکلی میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اس کی جو وائلنس کی اقسام بھی ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل وائلنس ہے, وربل وائلنس ہے اور فزیکل وائلنس بھی ہے. تو یہ ساری جب ایک اس کی پیچھے ریزنز ہوتی ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے کہ وربل کوئی وائلنس کر رہا ہے یا فزیکل وائلنس کر رہا ہے. اس کی بہت زیادہ پیچھے لانگ ہسٹری ہے. اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس, وہ پیسفل انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے دیکھیں اور پھر اس کو لنک کرتی ہوں میں اس چیز سے کہ یورپ کو آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب پوری ڈیوسٹیشن ہوئی تھی تو انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ 3 چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اکانومی, ایجوکیشن اور پیس, اور انہوں نے اس پہ کام کیا. دیکھیں وہ کس طرح سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور وہ کہاں لے گئے. اب ہمارے خطے میں, ہمارے ریجن میں دیکھیں پیس, یہ 3 بہت اہم چیزیں, اور یقیناً پیس ہی وہ ایسی چیز ہے جو عدم تشدد کے حوالے سے آج کے دن کا پیغام بھی کلیئر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ, آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو اور آج کے دن کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھیں. اور ناظرین اب ہم بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. آج ایک اور اہم دن ہے. معروف پاکستانی اداکار, کامیڈی کے بادشاہ, ٹی وی اور اسٹیج کی معروف شخصیت, شاید ہی کوئی پاکستانی یا پاکستان سے باہر رہنے والا اس نام سے واقف نہ ہو. ہم بات کریں عمر شریف صاحب کی. عمر شریف صاحب کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے. کریئر کا آغاز 1974 میں اسٹیج اداکاری سے کیا. انہوں نے کامیڈی کا ایک منفرد ٹرینڈ انہوں نے متعارف کرایا. اس میں عوامی لہجہ, انداز اور روزمرہ کے واقعات کا مزاحیہ تجزیہ شامل رہا. عمر شریف نے تقریباً 5 دہائیوں تک درجنوں اسٹیج ڈراموں اور لائیو پروگرامز میں پرفارم کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی انہوں نے اداکاری کی. بکرا قسطوں پر, بڈھا گھر پہ ہے جیسے لازوال اسٹیج ڈرامے آج بھی بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور بے حد مقبول ہیں. گلگت بلتستان کے نامور محقق, کئی کتابوں کے مصنف اور دانشور سید محمد عباس کاظمی مرحوم کی یاد میں اسکردو میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مختلف علمی اور ادبی شخصیات نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا. رپورٹ کر رہے ہیں قاسم نسیم. گلگت بلتستان کے نامور محقق, مصنف اور دانشور سید محمد عباس کاظمی کی یاد میں اسکردو میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد ہوئی, جس میں گلگت بلتستان اسمبلی کے سابق اسپیکر حاجی فدا محمد ناشاد, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے کوارڈینیٹر محمد تقی اخونزادہ اور ملک کے نامور دانشور, کئی درجن کتابوں کے مصنف پروفیسر مقصود جعفری سمیت خطے کی علمی و ادبی شخصیات نے مرحوم کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی. مرحوم کی اب تک 5 کتابیں بلتی لوک گیت, آثار و اجداد امام خمینی, خطۂ قراقرم, قدرتی وسائل کا خزانہ, چھٹے دلائی لاما کی رومانوی شاعری اور کسر دسن افگارڈ شائع ہو چکی ہیں.
उनकी कई तहकीकी किताबें अभी जेर तबा है। मरहूम बल्ती असली रस्मुल खत एगे के भी माहिर थे। मरहूम कई बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर खित्ते की नुमाइंदगी कर चुके हैं। यूनेस्को के जेर तमाम जापान में क्लासिकी मौसीकी पर होने वाले सिम्पोजियम में आपको ऑनरेबल के खिताब से भी नवाजा गया था। आप बैन अल-अक़वामी जरीदों में भी तहकीकी मज़ामीन लिखते रहे हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। नाज़रीन, लोगों में आंखों की सेहत से मुतल्लिक़ आगाही न होने की बिना पर आंखों के अमराज में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आंखों के मुफ्त इलाज के लिए निजी तंजीमी इदारे मसरूफ़ अमल हैं। इस्लामाबाद में भी निजी तंजीम की जानिब से आंखों के मुफ्त इलाज के लिए एक रोज़ा मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया। इस फ्री आई कैंप में आने वालों की कसीर तादाद गरीब और मुस्तहिक मरीजों की थी, जिनका जदीद कंप्यूटराइज्ड मशीनों से आंखों का बिल्कुल मुफ्त मुआयना भी किया गया। मुआयने के बाद मरीजों को अद्वियात भी दी गई और नज़र की ऐनक भी मुफ्त फराहम की गई। प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे खेलों के हवाले से, जिक्र करेंगे क्रिकेट का। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का 7वां और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। ये फैसला कुन मैच है। इससे पहले 3-3 से ये सीरीज बराबर है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बराह रास्त एक्शन 7:30 बजे शुरू होगा। PTV स्पोर्ट्स AG पर आप बराह रास्त देख भी सकेंगे। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज़ बराबर है और कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी इसका फैसला आज होगा। ज़ीशान क़य्यूम ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और अभी तक जो सीरीज़ है बड़ी शानदार रही है। 3-3 से हमने बिल्कुल आगाज़ में बात की थी। तीसरे मैच में गालिबन के एक हम जीतेंगे, एक आप जीतेंगे, फिर हम जीते, इंग्लैंड जीता, फिर पाकिस्तान जीता और एक मैच में पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया और फिर इंग्लैंड ने सरप्राइज़ कर दिया। अब क्या आज के मैच से एक्सपेक्टेशंस हैं और ओवरऑल सीरीज़ कैसी रही पाकिस्तान और इंग्लैंड की? देखिए रिजवान, जिस तरह की ये सीरीज़ थी, दिल तो नहीं कर रहा, हालांकि 7 मैचों की सीरीज़ थी, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है कि ये मज़ीद और मैचेस होते। इतने सनसनीखेज, इतने दिलचस्प मैचेस, शायकीन की जो तवज्जो का मरकज़ थी ये पूरी सीरीज़, और तमाम मैचेस जिस तरह से हाउसफुल थे, जिस तरह के आखिरी ओवर में जाके इनका नतीजा होता था और अप्स एंड डाउन्स आते रहे सीरीज में। तो मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट मैच के अलावा जो देखिए बिल्कुल सेकंड लास्ट के अलावा, लेकिन एक मैच तो देखें ऐसा हो ही सकता है। आप बाकी 5 मैचों को भी तो देख लें। ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, तो बहुत मज़ा आया और इंग्लिश क्रिकेट टीम का भी हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो आए और उन्होंने पाकिस्तान के मैदानों को जिस तरह से देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी शायकीन जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये पैगाम गया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है, और यहाँ के फैंस भी जो हैं वो बेस्ट फैंस हैं, और यहाँ की क्रिकेट भी कमाल की क्रिकेट है। बिल्कुल ज़ीशान, इसमें कोई शक नहीं है कि कमाल की क्रिकेट है और शायकीन क्रिकेट हमेशा ही पुरजोश होते हैं जब भी पाकिस्तान की जो टीम है वो मैदान में उतरती है। अच्छा, अब तक की अगर हम टीम की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करें ज़ीशान, उसको देखते हुए आज जो मैच होने जा रहा है यकीनन एक ऐसा मैच है कि जो सीरीज़ के हवाले से फैसला करेगा। क्या देख रहे हैं कि किस तरह का मैच आज हम देख पाएंगे? सनसनीखेज होगा, मज़ीद इसमें अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने में मिलेंगे और दिलचस्प जो मराहिल हैं उससे गुजरते हुए हम किसी नतीजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है, आपने भी जैसा कि कहा और जैसा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम कभी भी सरप्राइज कर सकती है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान टीम हमेशा ही सरप्राइज करती हुई आई है। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके ज़्यादातर हम देखते हैं कि उसका उलट ही होता है। जब हम देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान मैच हार रहा होता है तो वो वहाँ से ही जो है वो पाकिस्तान जीत जाता है। ये हमें इस सीरीज़ में भी देखने को मिला। आज टॉस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पिछले मैचेस में भी आपने देखा कि टॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आज भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ड्यू फैक्टर है। और सेकंड टीम जो बॉलिंग करने वाली टीम है वो उसको यकीनन थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। हालांकि हमने देखा कि 2-3 मैचेस जो थे वो सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम भी जीती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखें तो टॉस का काफ़ी फैक्टर है। और मेरे ख्याल में आज जो टीम टॉस करेगी वो पहले फील्डिंग का ही फैसला करेगी, क्योंकि पहले बैटिंग करना मेरे ख्याल में अब आखिरी मैच डिसाइडर जो है उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इतना अच्छा फैसला होगा। तो ज़ीशान, जो इंटरेस्टिंग और सब लोग जानना चाहते हैं वो आज का
ٹیم کمبینیشن ہے. بہت زیادہ تنقید ہوئی ہمارے مڈل آرڈر پر اور پھر اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹس نہ کرنے پر. انگلینڈ نے اپنے تمام پلیئرز کو موقع دیا, بینچ اسٹرینتھ ٹیسٹ کر لی. ورلڈ کپ پہ جانا ہے انگلینڈ نے, پاکستان نے بھی آج رات ہی فلائی کرنا ہے. آپ ہی کا ٹویٹ تھا کہ پاکستان ٹیم یہاں سے ڈائریکٹ جائے گی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, تو پہلے نیوزی لینڈ جائے گی اور پھر وہاں سے ورلڈ کپ کے لیے جائے گی. تو ہمیں آج ابرار کو موقع دیں گے, رضوان واپس آئیں گے, حارث کنٹینیو کریں گے. آج کمبینیشن کے حوالے سے آگاہ کیجیے. دیکھیں اس سیریز میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور انگلینڈ نے دونوں ٹیموں نے مختلف اپروچ سے کرکٹ کھیلی ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت ہی محتاط انداز میں کرکٹ کھیلتا رہا ہے, جبکہ انگلینڈ جو ہے وہ پوری جس طرح سے ایک ٹیپیکل T20 کرکٹ میچ کھیلنا چاہیے اس طرح سے وہ ہر میچ کو لے کے جاتے رہے ہیں. وہ میچ ہارتے بھی تھے تو اگلے میچ میں وہ ضرور چینجنگ کر کے تمام پلیئرز کو وہ موقع دیتے رہے, روٹیشن پالیسی پر وہ چلتے رہے. حالانکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جوز بٹلر نہیں آئے, حالانکہ وہ بھی آتے تو پھر کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی ان کے پاس بڑے اہم پلیئر نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں بیئرسٹو باہر ہو چکے ہیں, جوفرا آرچر نہیں ہے ان کے پاس. بہرحال انگلینڈ کی اس کرکٹ ٹیم نے کافی زیادہ امپریس کیا ہے کہ وہ ینگسٹرز لے کر آئے اور وہ ایسے پلیئر کو بھی لے کر آئے جو ان کے ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی اپروچ تھی. اور پاکستان کی اگر اسکواڈ کی ہم بات کریں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم انہی پلیئرز کو ہی رکھیں جن پہ ہم انحصار کر رہے ہیں, جن پہ ہم انحصار کرتے ہیں, انہی کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے. اچھا ذیشان, پچ بڑی اہم ہوتی ہے. آج کے میچ میں, آج کا میچ بھی لاہور ہی میں کھیلا جائے گا. پچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, پچ کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں, ٹف ٹائم دے گی بالرز کو یا بیٹسمین کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی؟ میرے خیال میں آج کی پچ جو ہے وہ تھوڑے سے ہائی سکورنگ کے لیے بنائی جائے گی, کیونکہ ہم نے پچھلے 2 میچز دیکھے کہ ایک میں تو انگلینڈ نے جس طرح سے کھیلا اس کے لیے لگ رہا تھا کہ وہ ہائی سکورنگ ہے, لیکن پاکستان نے جس طرح سے مشکل سے 170 تک پہنچا تو وہ لگ رہا تھا کہ لو سکورنگ ہے. بہرحال پچ جو ہے وہ آج آخری میچ ہے تو میرے خیال میں پچ ایسی ضرور ہوگی کہ اس میں بیٹسمین کو سپورٹ کرے گی, بلے بازوں کو سپورٹ کرے گی, لیکن اس میں بالرز کے لیے بھی کچھ ہونا ضروری ہے اور سپنرز جو ہیں وہ بھی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا میچ ہوگا. اور قذافی اسٹیڈیم کا ماحول اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شائقین وہاں پہنچ چکے ہیں اور بڑا زبردست ایٹماسفیئر ہے. تو 7 بجے ٹاس ہوگا اور سب کی نظر اس وقت ٹاس پہ ہیں اور اس کے بعد ٹرافی پر ہے. ٹاس کے بعد کون جیتے گا, اس سیریز کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک ناظرین جو 6 میچز ہوئے ہیں ان میں سے 5 ٹاس معین علی نے جیتے ہیں, بابر اعظم صرف 1 ٹاس جیتے ہیں. ذیشان قیوم, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اسٹوڈیوز میں اور بات ہو رہی تھی پاکستان انگلینڈ سیریز کے حوالے سے. نتیجہ آج کے میچ کا جو بھی ہے, پاکستان نے بڑی شاندار کرکٹ کھیلی, انگلینڈ نے بڑی شاندار کرکٹ کھیلی. اس سیریز میں تھرو آؤٹ جو ایکشن تھا اس میں سب سے اہم ایلیمنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے کرکٹ گراؤنڈز آباد ہوئے ہیں. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کا ایک اور باب جو ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہے اور اب انشاءاللہ مزید ٹیسٹ پلئنگ نیشنز بھی پاکستان کا رخ کریں گے اور پاکستان آ کر کرکٹ کھیلیں گے. بالکل جی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر رکے گا کیونکہ وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.